everyone, my name is Premada and welcome back to Word Student School. Today in this session, we are going to start with part 2 of chapter Nutrition in Animals, that is your second chapter of class 7th. So in the previous lecture, we studied about the buccal cavity, I believe, right? We were studying about the digestive system in humans. कि digestion कैसे होता है? तो till now we have done the buccal cavity in which we have studied about teeth, 4 types of teeth that were incisors, canines, premolars and molars, and apart from that we were studying about the tongue, how it is a muscular organ and it has 4 types of taste buds, that is for bitter, sour, salty and sweet. And in this session we are going to start with the next part of the digestive system that comes after the buccal cavity. So yeah, let us begin with our chapter. So now the first topic of our lecture is the food pipe or the esophagus. And do not forget to pronounce it as esophagus because it is not oesophagus, it is esophagus. Alright, so let us now start. The food that is swallowed passes into the esophagus. So what happens whenever we chew the food and when it gets mixed properly with the saliva and the starch gets broken down into simple sugars by the action of salivary amylase, then it goes further into the stomach. But ये ऐसा नहीं होता कि बेटा कि वो आपने chew किया तो directly falls in the stomach. It never happens. It requires a passage. It requires a pathway. So yes, that food pipe provides that passage to the food till the stomach. So let us study its basic features. That it is a muscular tube about 25 centimeter long. You need to remember that कि कितनी लंबी होती है? 25 centimeter long होती है क्या? Food pipe with a sphincter. Now what do you mean by sphincter? तो क्या होता है, हमने खाना खाया and it has to go in the stomach. तो it's not a dumping area, है ना? Let's just be clear, let's be a little formal thinking about कि it's not a dumping area कि आपने खाया और वो directly बस चले ही जा रहा है. No, ऐसे तो आप कुछ भी खाओगे तो एकदम से इतना सारा amount एक साथ stomach में गिर जाएगा. So that may cause a problem. So जो sphincter होता है बेटा वो generally ends में present होता है. So let's suppose कि अगर आपने खाना खाया है mouth में, let's suppose this is the mouth and this is the food pipe that I'm talking about. ये food pipe है and it is straight opening in the stomach. It is straight opening in the stomach. So what happens is कि जैसे ही आपने food chew किया तो ये यहाँ से food नीचे आया and there is a sphincter here, somewhere here. This is the sphincter I am talking about. तो ये क्या करता है? It provides opening and closing of the sphincter valve so that food can enter inside the stomach. ताकि यहाँ से food जो है वो enter कर जाए. तो ये एक door की तरह काम करता है. Are we clear? Door की तरह काम करता है कि जब food आता है then only it gets open. ऐसे बिना बात के open नहीं होता. तो अगर by chance ये open हो भी गया, for example कोई door होता ही ना फूड पाइप और स्टमक के बीच में, तो जो हमारे पेट में ऑलरेडी खाना आया है ना वो फिर वापस ऊपर आ जाता है ना, अगर डोर नहीं होता तो. ऐसे तो कोई भी आ जा सकता है. सो दैट इज व्हाई अ वॉल्व इज प्रेजेंट एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट एंड उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द स्फिंक्टर, राइट? एंड इट इज प्रेजेंट एट द ईच एंड. इफ यू टॉक अबाउट, चाहे आप स्टमक की स्टार्टिंग में बात करो तो भी प्रेजेंट होता है एंड अगर आप स्टमक के एंड पे बात कर रहे हो तो भी वहां प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर. Openings are there when you transfer from one organ to another organ. Are we clear? Okay. So the next point is its function is to transport food and fluid after being swallowed from mouth to stomach. कहाँ से जा रहा है food? It is going from food आपने यहाँ chew किया and mouth से stomach पे लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? Food pipe की होती है. ठीक है? तो function सबको समझ में आ गया? That it provides a passage for the food to go into the stomach. All right? But एक बात ये भी समझ लो. For example, if I am saying again and again कि food ऐसे ही नहीं गिरता है, तो if I am talking about even though a sphincter is present, तो food को धक्का देना इतना आसान नहीं है ना? Because ऐसी फिसल पट्टी तो है नहीं हमारे food pipe में. Yes? तो क्या होता है कि there are particular movements of muscles. Like it's more like a workout, I would say. Esophagus का workout है. So what I am suggesting is that कि जब food आता है esophagus में तो इस तरीके की कुछ movement होती है, wavy movement I would say, wavy movements like this. तो
क्योंकि सी अब यहाँ इमेज पे आ जाओ जो आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, दिस इमेज आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे देख रहे हो आप थोड़ा सा स्वेल्ड अप हो गया है इसोफेगस, राइट, बिकॉज अ फूड इज प्रेजेंट हियर। फिर फूड थोड़ा और नीचे जाएगा तो वो दोबारा अपने बैक टू द पोजीशन, फिर फूड नीचे जाएगा तो वो दोबारा स्वेल्प हो जाएगा। तो वेवी मोशन हो रहा है, इस तरीके का वेवी मोशन होके देन द फूड इज गोइंग इनटू द स्टमक, यस, and this movement is called as peristalsis. It is called as peristalsis, although it is not in your syllabus, but I just want you to know the name, that it has a particular name, this muscular movement. All right, so देखो अब धीरे धीरे कैसे फूड स्टमक में जा रहा है, एंड यहाँ पे स्पिंक्टर प्रेजेंट है बेटा, somewhere here there is an opening which allows food to enter in the stomach. Yes, so now let us read what they have written here. Food is propelled down by as they are in movement through the walls of the food pipe. किसके थ्रू जाता है? फूड पाइप के वॉल से होता हुआ it goes inside the stomach. Now let us talk about the stomach, that is the next part of the digestive tract. Okay, so yes, let us start now with the stomach. That it is a thick walled bag-like structure. Now let's see this picture of stomach. Before going forward to anything else, let us see the structure of the stomach. So you can see it resembles a bag-like structure. It does looks like a bag-like structure, है ना? हम बोल सकते हैं कि ये bag-like structure है because ये bag की तरह ही दिख रहा है. So it is a thick walled. Second thing, ये thick walled है, it is not thin walled. तो ये कुछ some are these characteristics जो आपको याद रखने हैं, that it is a thick walled bag-like structure shaped like a flattened J. So ये इसको just to remember the J name has given J alphabet, that if you try to draw an alphabet then you will be able to draw the alphabet J if you follow the structure of the stomach. So that is why it has said that stomach is a J shaped thick walled bag like structure. Are we clear? All right, now let us move on to the next point. It obtains food from the food pipe and opens into the small intestine. तो अब आ जाते हैं दोबारा स्ट्रक्चर पे. So let's suppose this is the esophagus. This is the part of the esophagus जो हमने पहले पढ़ा है. Esophagus. Yes. And this is the starting of the small intestine. This is the initiation part of the small intestine. Right. So what is happening? Food आया यहाँ से, esophagus से food is coming and food is getting digested here. All right, and then it is going into the small intestine like this. Yes, clear now? All right, so the inner lining of the stomach produces mucus, hydrochloric acid and other digestive juices. Some of the digestion was taking place in the mouth. For example, starch. तो starch कहाँ पे हो रहा था? Mouth में the starch was getting digested into simple sugars. Yes? And when the food comes into the stomach, then by the action of, do you know that our stomach has acid? Nobody believes it, है ना? आपको लगेगा कि acid है तो it can damage, but no. Acid ऐसा नहीं है that it can damage your stomach because we have mucus. यहाँ पे आप देख रहे हो mucus, आपका word दिया हुआ है. तो basically mucus जो present होता है, it is present on the lining of the stomach. Stomach के अंदर present होता है. And ये किस चीज में help करता है? ताकि जो एसिड हमारे पेट में है वो डिस्ट्रॉय ना करे स्टमक को, ये इस चीज में हेल्प करता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस एज वेल, है ना? बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस भी हैं हमारे पास. एंड ये क्या करते हैं? स्टमक में आके फर्दर प्रोटीन का जो है बेटा ब्रेक डाउन होता है. प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इन द स्टमक. ठीक है? with the help of mucus, with the help of hydrochloric acid and with the help of various digestive juices which are present in our stomach. तो ये आपको येलोइश कलर का फ्लूइड दिख रहा है आपको डायग्राम में, that is an acid. ये एसिड है बेटा. एंड ये क्या करता है? फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करता है, और ज्यादा ब्रेक डाउन करता है. कार्बोहाइड्रेट्स तो माउथ में हो गए, बट माउथ में प्रोटीन्स नहीं डाइजेस्ट हो सकते. सो फॉर दैट रीजन food comes into the stomach and the proteins are digested in the stomach. And इसके बाद food कहाँ जाएगा? It will go into the small intestine. Are we clear? All right. So stomach में क्या होता है? Food is churned into a semi-solid mass in the stomach. और ज़्यादा digestion होती है, जैसा मैंने डिस्कस किया. And enzymes present in the gastric juice disintegrate food.
गैस्ट्रिक जूस कौन से हैं बेटा? डाइजेस्टिव जूस को ही हम गैस्ट्रिक जूस बोल रहे हैं। एंड ये क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेट, इसका मतलब ब्रेक डाउन। दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। यस, एंड एज आई टोल्ड यू दैट द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। एंड किससे इसको प्रोटेक्शन चाहिए बेटा? प्रोटेक्शन इसको चाहिए HCl से, दैट इज एन एसिड। ये क्या है? एसिड है। सो द डाइजेस्टिव जूसेस break down the proteins into simpler substances, as I have told you कि प्रोटीन्स जो हैं वो स्टमक में ब्रेक डाउन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ करते हैं? they break down inside our mouth। प्रोटीन्स कहाँ करते हैं? they get broken down into our stomach with the help of HCl and various digestive juices। yes, now food has entered in the small intestine। finally food कहाँ आ गया है? small intestine में आ गया। now let us first see this picture। तो ये आपका हो गया ईसोफेगस। ईसोफेगस डन, ठीक है। यहां ऊपर लेट्स सपोज दिस इज द हेड ऑफ अ पर्सन, तो यहां पे आ गया माउथ, ऑलराइट, एंड दिस इज द स्टमक, दिस इज द स्टमक। नाउ जो आपको 3 कलर वाला पार्ट दिख रहा है ना, जिसमें आपको थोड़ा येलोइश भी दिख रहा है, वॉयलेट दिख रहा है, पर्पल दिख रहा है, ये सब क्या है बेटा? दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस होल पार्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, रादर this is the small intestine which is after the stomach। स्टमक का जो क्लोज, जहां पे एग्जिट खत्म होता है, जहां पे स्टमक खत्म होता है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं बेटा। दिस इज अ हाईली कॉइल्ड ऑर्गन। तो कुछ जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स याद रखने हैं वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन as it is given in this image also that it is a highly coiled organ। आपको दिख रहा है ना कितनी ज्यादा कॉइलिंग है, and of 7.5 meters length। इतनी ज्यादा लेंथ होती है कि 7.5 मीटर, सोचो हमारे स्टमक में किस तरीके से फिटेड है। It means that it is highly coiled, that is why it is fitted so intensely inside our stomach, yes, inside our digestive tract, I would rather say। Now it receives secretion from liver and pancreas। रिमेंबर हमारे जो एक्सेसरी इंपॉर्टेंट मेजर एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से थे? मेजर एक्सेसरी ग्लैंड्स ऐसे याद रखोगे आप, ठीक है। मेजर एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से थे? फर्स्ट वन वाज द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड वाज फर्स्ट मेजर एक्सेसरी ग्लैंड। उसके बाद सेकेंड नंबर पे वी स्टार्टेड अबाउट द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज वाज मेजर एक्सेसरी ग्लैंड एंड थर्ड वाज द लिवर। याद आया सबको? तो पैनक्रियाज एंड लिवर, देखो सलाइवरी ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, माउथ में था, माउथ में खत्म हो गया, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड का यूज हो गया है। अब बचे कौन से दो? पैनक्रियाज एंड लिवर। तो पैनक्रियाज एंड लिवर्स क्या करते हैं बेटा? ये डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं। दे रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस, ऑलराइट, एंड व्हाट दे डू इज फर्दर दे हेल्प इन फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, राइट। सो अब याद रखो कि कुछ डाइजेशन हमारा हुआ था इनसाइड द माउथ, some digestion happened inside our stomach, and further complete digestion, जो पूरे तरीके से जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीट एकदम कुछ नहीं बचा, that happens in the small intestine and you must remember it। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है बेटा कि कंप्लीट डाइजेशन किधर होती है, किस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो याद रखो, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो that in the small intestine complete digestion takes place। yes, okay, and apart from that complete digestion का मतलब everything has digested now, whether you talk about carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, etc., everything has been digested in the small intestine। but अब इसको जाना भी तो है, इसको सारे सेल्स में भी तो सर्कुलेट होना है, क्योंकि since the complete digestion has taken place it has to go to other cells to provide energy। क्योंकि हमारी बॉडी किस पे काम कर रही है? वी आर वर्किंग ऑन एनर्जी एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम आवर फूड। सिंस द कंप्लीट डाइजेशन हैज टेकन प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, नाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आल्सो टेक्स प्लेस। इट विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। तो मैं यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन भी ऐड कर देती हूँ। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक तक, जहां तक मैंने आपको मार्क लगाया है, यहां तक तो सिर्फ फूड डाइजेस्ट ही हो रहा है, हाफ डाइजेस्ट हुआ है। कंप्लीट डाइजेशन हुई है कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो आपको ट्राई कलर दिख रहा है स्ट्रक्चर, ऐसा होता नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द डिपिक्शन, बिकॉज आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
तो 3 पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके 3 कलर्स में दिखाए हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है. सो कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. You must remember that small intestine is an highly coiled organ. Yes, and the juices from pancreas and liver helps in the complete digestion of the food inside the small intestine. Are we clear till here? Okay. अब बात करते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन. समझ लो थोड़ा. डाइजेशन तो हो गई, डिफरेंट जूसेस आए, फूड को और ब्रेक डाउन कर दिया, तो डाइजेशन कंप्लीट हो गई. अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगी बेटा? एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है? एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में इतनी, आप इतना खाना खा रहे हो तो इतनी सारी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, है ना? ये भी तो पॉइंट है. तो समझ लेते हैं ये भी. द इनर वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई. इसको छोड़ो, डायग्राम पे आओ. या आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, है ना? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा फैक्ट है. अगर मैं किसी वॉल को इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूं, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रिक, तो इसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, या फिर अगर मैं किसी वॉल को इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूं, जैसे मैंने अभी आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में आपको मैं ड्रॉ करके ऊपर दिखा रही हूं, कि इसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी. तो अगर हम देखें, इन दोनों को कंपेयर करें, तो आई बिलीव सेकंड वाले में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी. क्यों? क्योंकि ये जो लूप्स बने हुए हैं ना, ये लूप्स, ये भी तो सरफेस एरिया है, ये भी तो आपको जगह प्रोवाइड कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की, है ना? आर वी क्लियर? तो अब आपको समझ में आया कि ये एब्जॉर्प्शन ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होती है? बिकॉज द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड एज विलाई. And villi provides more surface area for the absorption of nutrients. Clear? Okay. And ये function बहुत ही important है बेटा. डबल स्टार मैंने लगा दिया है. रीजनिंग में क्या पता आपको ये क्वेश्चन आए, एंड अगर आप फर्दर पढ़ोगे साइंस में तो इट विल कीप ऑन कमिंग. सो विलाई का फंक्शन क्या होता है बेटा? विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. वेरेवर यू सी दिस वर्ड विलाई, ये बात याद रख लो. विलाई आपको जहां भी दिखेगा पूरे आपके बॉडी में, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम बट अदर सिस्टम्स एज वेल, जहां भी आपको विलाई दिखे, द ओनली फंक्शन विलाई हैज इज फॉर दी टू प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी. द ओनली फंक्शन ऑफ विलाई इज दैट कि सिर्फ ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है कि ताकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए, राइट? एंड ईच विलस हैज अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. ये आपको दिख रहा है अंदर ब्लू और रेड कलर के कलर्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है? दीज आर दी ब्लड वेसल्स. क्या बोलते हैं इनको? ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड रन कर रहा है. द ब्लड इज रनिंग इनसाइड दीज ब्लड वेसल्स. एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है फिर? डायरेक्टली विलाई में. यहां से फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स घुसते हैं, यहां से लेट्स सपोज न्यूट्रिएंट्स घुसे, तो वो कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली इनसाइड द ब्लड, है ना? एंड ब्लड विल सर्कुलेट थ्रू आउट इन आवर बॉडी एंड इट विल प्रोवाइड अस विद द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. यस. Now, absorbed food by villi is transferred to the body via blood vessels. समझ में आ गया? Blood vessels के थ्रू सारा फूड फिर सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में. Yes? Now, the absorbed substances are transported via blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. एंड अब क्या हो रहा है बेटा? ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? टू डिफरेंट ऑर्गन्स. क्योंकि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स भी तो फंक्शनिंग हैं, उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए. सो ब्लड वेसल्स कहाँ पे हैं? दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट आवर बॉडी, एंड इस वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना इस तरीके से आसान हो गया. एंड वेयर दे यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. वहां तक जाते हैं, उन जगहों तक न्यूट्रिएंट्स जाते हैं जहां पे प्रोटीन्स बिल्ड हो रहे हैं. यस, क्योंकि हमारी बॉडी में इनबिल्ट भी प्रोटीन्स बिल्ड होते हैं. ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मतलब यूसेज ऑफ न्यूट्रिशन. ये यूसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. बात समझ में आई? डाइजेशन सिंपल शब्दों में समझ लो. डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स.
Assimilation means utilizing the nutrients, यूज करना nutrients का, that is what is assimilation. ठीक है. And the food that remains undigested. अब ऐसा तो नहीं है ना कि solid food सारा खत्म हो गया, क्योंकि blood क्या है बेटा, liquid है, उसमें आप सारा खाना एकदम से नहीं जा सकता ना. There are some remains, जो ऐसे खाना, ऐसा food material है जो undigested है, जो digest ही नहीं हुआ. So the food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. यहां देख लो फटाफट अब इस डायग्राम में, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगी, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन किधर हो रही है, फ्रॉम दी विलाई, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की बात करें कि न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन खत्म हुई, द मोमेंट, एंड फिर जो क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉलिड फूड मटेरियल, इट एंटर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन. दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है. एंड फूड चुपचाप कहां चला जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इट गोज डायरेक्टली इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. क्लियर. अब आ गए हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन पे फाइनली. सो इट इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. एज यू कैन सी कि कितना ब्रॉड है. स्मॉल इंटेस्टाइन की हाईली कॉइल्ड, पतला सा था, वेयर एज लार्ज इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड ऑब्वियसली इट इज शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज 1.5 meters in length, whereas 7 point something meters was small intestine. अब क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, तो हम, आपको याद है कि हमारा वाटर भी न्यूट्रिएंट था. Does somebody remembers? I hope you remember that water is a nutrient. Water is a nutrient. You don't have to forget that. सिर्फ आपने यही नहीं लिख के आना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स. वाटर इज ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट. ऑलराइट. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो बचा कुचा पानी है बेटा अनडाइजेस्टेड फूड में, दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन. जब सारे न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हो गए एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसकी एब्जॉर्प्शन होती है, पानी की, एंड रिमेनिंग सॉल्ट, जो कुछ सॉल्ट रह गए, मतलब छोटी मोटी एब्जॉर्प्शन वाटर एंड सॉल्ट्स की, दैट टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन from obviously undigested food that occurs in the large intestine. Now look at this diagram. तो ये जो आपको पिंक कलर का छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, that is the ending of the small intestine, which is leading into the large intestine. तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स मेंशन्ड हैं बेटा, ये सब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं. एंड यहाँ पे इन वॉल्स के थ्रू किसकी एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर एंड सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ठीक है. ब्लड किसका बना होता है, ब्लड में पानी होता है ना. हमारी बॉडी 70% किसकी बनी होती है बेटा, पानी की. नाउ रिमेनिंग वेस्ट मैटर जो बच गया, उसके बाद भी जो बच गया, सेमी सॉलिड. एक बात याद रखना बेटा, कोई ये नहीं लिख के आएगा कि सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया. Nobody will write down that in the exam कि complete absorption of water and salt. Complete absorption नहीं होती है, ये बात याद रख लो. क्योंकि अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गई पानी की, तो आपका जो फीकल मैटर है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको प्रॉब्लम आएगी मूव करने में. अगर सेमी सॉलिड रहेगा फूड, सेमी सॉलिड जिसमें वाटर का थोड़ा बहुत कंटेंट रहेगा, तो मूवमेंट आसान रहती है, बॉवल मूवमेंट अच्छा होता है. फॉर दैट यू ईट फाइबर्स, ताकि आपकी बॉवल मूवमेंट ठीक हो. तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन पानी की नहीं होती है, ये याद रख लो. आपने बस लिखना है कि some amount of water and salts get absorbed in the large intestine. Now remaining waste matter is passed out through the rectum. जो बचा कुचा है अनडाइजेस्टेड फूड, वो रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है. मैं यहाँ लिख रही हूँ टेम्पररीली स्टोर्ड, टेम्पररीली स्टोर्ड, ये मैंने यहाँ पे लिखा है. There is a reason why I have written temporarily stored. अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ आया तो ऐसा नहीं है कि वो निकल जाएगा आते. When you'll go to the washroom, when you sit for some time, then the undigested food will come out through the anus. Only then, and that process is called as egestion. Fecal matter का बाहर निकलना, the exit of fecal matter removed from your anus, from your body, that is called as egestion. 3 हमने पढ़ लिए बेटा सिमिलर नेम वाले. फर्स्ट वन हमने पढ़ा था ingestion, that is taking the food, taking food.
सेकेंड प्रोसेस हमने इतनी लंबी कहानी पढ़ी है डाइजेशन की. डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. थर्ड वन है इजेशन. इजेशन दैट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अनडाइजेस्टेड फूड, राइट. जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है दैट इज रिमेंबरिंग द नेम, बट आपने याद भी रखना है अपनी बॉडी सोच के. माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. एक्सेसरी ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है. पैनक्रियाज एंड लिवर दैट रिलीजेस द डाइजेस्टिव जूसेस, रिक्वायर्ड डाइजेस्टिव जूसेस फॉर द ब्रेकडाउन. एंड फिर इसके बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम सारा समझ में आ जाएगा एंड इट इज अ वेरी इजी टॉपिक. यस, बस थोड़ा सा ध्यान देना है. अब एनस देख लेते हैं बेटा. द एनस इज द ओपनिंग एट द एंड ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये ओपनिंग है जहां से इजेशन होता है. क्या होता है? इजेशन. दैट इज रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड. तो ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट है एनस, जहां पे मैंने मार्क किया है नीचे डायग्राम में. दैट इज वेयर द एनस प्रेजेंट. एंड ये आपका सारा स्ट्रक्चर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इज गिवन इन दिस डायग्राम. नाउ द रिमूवल ऑफ द फीकल मैटर फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन occurs through the anus and this process is called as egestion as we have discussed. ठीक है. So mouth से खाना start हुआ and undigested food कहाँ से निकल गया? anus से. That will complete your digestive system. Now how digestion takes place in the grass eating animals? ठीक है, because क्योंकि body structures different होते हैं, digestive system different होता है, so the mode of digestion is also different in different types of animals. तो अब हम देख लेते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैसा होता है. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमंस ऑब्वियसली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स हियर. फॉर एग्जांपल काउ, एंड काउ एंड ह्यूमन तो डिफरेंट है ना, बॉडी स्ट्रक्चर वाइज भी डिफरेंट है. सो यस, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस वजह से डिफरेंट होता है उनका. नाउ दीज एनिमल्स आर च्यूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. यू माइट हैव सीन दैट. आपने देखा होगा गाय कैसे च्यू करती रहती है सारा टाइम खड़े खड़े, है ना. तो how does that happen? They swallow the grass very fast. मतलब हमारा प्रोसेस क्या होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? That we eat food, we chew it for a while, 3-4 minutes, then it goes into the food pipe, then into the stomach. ये इतना लंबा प्रोसीजर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का. But if you talk about the grass eating animals, so they do not chew the food. Chew करना ही नहीं है. They directly swallow it. Grass खाई, उसको swallow कर लिया डायरेक्ट. Yes? And उसको फिर स्टोर करके रखते हैं. ऐसा नहीं है कि वो ग्रास खत्म होगी जैसी गई अंदर. नो, ग्रास गई अंदर, दे स्वॉलोड इट एंड दे स्टोर इट पर्टिकुलरली इन अ चेम्बर जो उनके बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. दैट इज कॉल्ड एज द र्यूमन. उसको क्या बोलते हैं? र्यूमन. एंड र्यूमन इज अ स्ट्रक्चर इन विच द ग्रास ईटन और स्वॉलोड बाय द ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज स्टोर्ड. अब ग्रास में किसका कंटेंट होता है सबसे ज्यादा? सेल्यूलोज का. ये बात याद रखनी है, डबल स्टार लगा रही हूं मैं. ग्रास में किसका कंटेंट होता है? सेल्यूलोज का. वेयर एज हम जो फूड खा रहे थे उसमें किसका किसका कंटेंट होता है? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स एक्सेट्रा. ग्रास हैज सेल्यूलोज, राइट. नाउ इन द र्यूमन द बैक्टीरिया पार्शियली डाइजेस्ट द फूड. र्यूमन में आगे अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. तो क्या होता है? Rumen is a chamber that is present in the grass-eating animals, and that grass which is being swallowed by the grass-eating animals first gets stored into the rumen, then it gets partially digested by the bacteria. क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बेटा हमारी बॉडी में. फ्रेंडली बैक्टीरियाज आर देयर विच जनरली डू नॉट हार्म आवर बॉडी. कुछ harmful bacteria भी होते हैं, but friendly bacteria are also there in our body. So certain kinds of friendly bacteria partially digest the food, and ये partially digested food को हम क्या बोलते हैं? cud. It is the partially digested food. समझ में आ गया? ग्रास में होता है cellulose and it is partially digested inside the rumen which is called as the cud. Now later cud reverts to the mouth and the animal chews again it slowly. तो कहने का मतलब है जो ग्रास है, ग्रास पूरी ग्रास काऊ नहीं खा सकती, तो थोड़ा सा पार्शियल डाइजेशन चाहिए होता है. तो उसके लिए वो छोड़ देती कि बैक्टीरिया पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा,
फिर ह्यूमन से वो वापस बुला लेती है खाने को अपने इनसाइड इट्स माउथ एंड इट कीप्स ऑन च्यूइंग इट. ऑलराइट, एंड दिस फिनोमिनन इज रेफर्ड टू एज rumination. इसको क्या बोलते हैं हम? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज rumination, जिसमें खाना एक बार ह्यूमन में जाकर दोबारा माउथ में आता है and the grass eating animals keep on chewing it for longer period of time and slowly, and that particular process is called as rumination. and rumination पे भी डबल स्टार लग गया है, तो इसको याद रखना है. एंड ऐसे एनिमल्स जो rumination करते हैं, जो rumination का जिनका हैबिट है, those type of animals are called as ruminants. उनको क्या बोलते हैं? ruminants. and they do the phenomenon called as rumination. तो ये डायग्राम आ गया है बेटा. अब यहां समझ लो, ये ग्रास ईटिंग एनिमल है, इट इज अ काउ, एंड इसने खाई है ग्रास खा लिया एंड इट डायरेक्टली गोज इनसाइड द ह्यूमन. देखो ह्यूमन में आ गया ना. अब ह्यूमन में पार्शियली डाइजेशन होगी एंड देन इट विल फर्दर रिवर्ट बैक टू द माउथ एंड इट विल स्टार्ट च्यूइंग इट स्लोली. Now they also have a very long small intestine which helps in complete digestion of cellulose. अच्छा, इनका small intestine काफी long होता है, very long. अब ये बात समझो बेटा, since their small intestine is very long, so यहाँ पे लिखा हुआ है that they need large, very long intestine for complete digestion. It means cellulose को digest होने में time लगता है. इट इज नॉट बिकॉज कि इनमें कोई प्रॉब्लम है, इट इज बिकॉज कि जिस तरीके का न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, दे आर ईटिंग सेल्यूलोज, एंड टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज इट टेक्स अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम. सो दैट इज व्हाई दे हैव अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू विच कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस. दैट इज द कंपोनेंट ऑफ ग्रास, क्या? सेल्यूलोज. समझ में आ गया सबको? नाउ एनिमल्स लाइक horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. जो horses हैं बेटा, horses, rabbits, horse आपने देखा है, rabbits आपने देखा है, तो unlike cow, उनके जो esophagus है, food pipe and small intestine, उसके बीच में एक और sac-like structure present होता है, that is called as cecum. And the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria. Cow के केस में it was rumen, horses and rabbit के केस में it is cecum, in which जो food है partially digestion जो होती है वो यहाँ पे होती है in the presence of certain bacteria. And obviously cecum and rumen is not present in case of humans. We have stomach in which we have HCl, in which we have mucus, and in which we have various digestive juices. Now feeding and digestion in amoeba. अभी तक हमने पढ़ा है about humans, then we studied about the grass eating animals. Now we are going to study a little bit about amoeba. That is a prokaryote, that is a unicellular organism. Let us now see that. So amoeba is a single celled organism. इसका मतलब कि ये एक ही सेल है, it is a single cell only. इसी single cell में आपका पूरा amoeba आ गया है. Alright? तो अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर. इसका मतलब ये आपको माइक्रोस्कोप से दिखेगा. इसका कहने का मतलब है इस लाइन का दैट ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है, तो आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा एंड इट इज फाउंड इन पॉन्ड वाटर. अमीबा आपको मिलेगा कहाँ? पॉन्ड में मिलेगा. सो अमीबा रेगुलरली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन. As you can see in this image, this is the actual image of amoeba from the under the microscope. तो माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा अमीबा दिखता है जैसे आपको इमेज दिख रही है. एंड क्योंकि इसका शेप इरेगुलर है बेटा, इरेगुलर शेप का है, तो ये अपना शेप बदलता रहता है. अब जैसे स्टार फिश है, स्टार फिश स्टार के जैसी है. काऊ का भी अपना एक शेप है, इसको 4 लगे हैं, हमारा कुछ शेप है, तो वी कैन नॉट चेंज आवर शेप. बट अमीबा हैज दिस कैपेबिलिटी, यूनिकनेस, दैट इट कैन चेंज इट्स शेप. अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की. क्योंकि एक ही सेल है तो इसमें डाइजेशन हो कैसे रहा है ना. सो अमीबा कैप्चर्स द फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. ये सब मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड द थ्योरी दैट दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्यूडोपोडिया फ्रॉम विच दे हेल्ड और होल्ड द फूड पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल कैप्चर करना फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट,
उनका जो बॉडी पार्ट है स्यूडोपोडिया, उसे फूड कैप्चर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस. वी कॉल इट एज फेगोसाइटोसिस. समझ आ गया? स्यूडोपोडिया से फूड कैप्चर किया, प्रोसेस का नाम हो गया फेगोसाइटोसिस. अब क्या करेंगे फूड का? अब क्या करना है अमीबा ने? उसके बाद क्योंकि उनके अंदर बेटा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, आपने देख लिया स्ट्रक्चर सीधा सीधा, दे डोंट हैव एनी डाइजेस्टिव सिस्टम. सो व्हाट दे विल डू after they capture the food, for example this is the food, so what they are going to do, they are going to form a food vacuole around this. एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वॉल बना लेते हैं अराउंड द फूड इनसाइड देयर बॉडी. ठीक है? सो अ फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड विद द फूड मटेरियल इनसाइड. उस फूड वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है. ऑलराइट. एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी. एक बात याद रख लो कि चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है चाहे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, if the digestion is taking place inside that body, it means वहां पे डाइजेस्टिव जूसेस 100% प्रेजेंट हैं. बिना डाइजेस्टिव जूसेस के डाइजेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है? सो डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रोड्यूस्ड इनटू द फूड वैक्यूल व्हेन इट इज मूविंग थ्रू द साइटोप्लाज्म. तो क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस फूड क्या करता है? एक बार अमीबा में घुसा तो इट कीप्स ऑन मूविंग थ्रू आउट द बॉडी, एंड उस मूवमेंट के ड्यूरेशन में डाइजेशन हो रही होती है. द डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग विद इट, राइट? सो दे एक्ट ऑन द फूड. डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? दे एक्ट ऑन द फूड एंड डिसइंटीग्रेट इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. काम क्या होता है डाइजेशन का? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में चेंज करना. तो अमीबा ने जो फूड खाया है वो आ रहा है एंड इट इज गेटिंग डाइजेस्टेड, इट इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. आर वी क्लियर? एंड उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है? इट गेट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी ऑफ अमीबा, राइट? फाइनली द फूड वैक्यूल opens to the outside and undigested food is released into the surrounding water. काम वही है, ingestion, digestion and egestion. फूड लिया, डाइजेस्ट किया, बाहर निकाला. यही काम अमीबा में भी हो रहा है. नाउ लेट अस सी फ्रॉम दिस डायग्राम. अब अंडरस्टैंड कर लो इसको. ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, दिस इज द अमीबा. ठीक है? अब देखो ध्यान से, दैट इट इज अ फूड पार्टिकल. ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ये फूड पार्टिकल है. द मोमेंट अमीबा सॉ इट, फिर देखो क्या बनाना शुरू कर दिया. ये इंजेक्शन हो रहा है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया, जैसे जो हमने बात की थी. अब फूड धीरे धीरे क्या कर रहा है? कैप्चर कर रहा है अमीबा इन द सेकंड इमेज दैट यू कैन सी. नाउ लुक एट द थर्ड वन. फूड पार्टिकल के अराउंड उसको वॉल बनाना स्टार्ट कर दिया इन द थर्ड इमेज. एंड फोर्थ में फूड वैक्यूल जो है वो फॉर्म हो चुका है. सी हो गया ना, ये फूड वैक्यूल बन गया. फूड वैक्यूल के अंदर क्या आ गया है? फूड आ गया है. अब द डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. देखो डाइजेशन होने शुरू हो गई है, ये डाइजेशन चल रही है. ठीक है? यहां डाइजेशन हो रही है, दिस इज डाइजेशन. उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी आपकी, एसिमिलेशन होगी. एसिमिलेशन क्या हो गया? यूसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. यस, ये भी हो गया यहां पे. उसके बाद बचा कुचा खाना देखो बाहर आ गया, ये होगी इजेशन. बचा कुचा खाना जो था वो डाइजेस्ट किया एंड बाहर कर दिया. ये डायग्राम बेटा आ सकता है आपको, अकेला यही डायग्राम बनाने को आ सकता है. तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए. ऑल्दो इट इज अ वेरी इजी डायग्राम, बट इट कैन कम इन योर एग्जाम बिकॉज इट इज जनरली आस्क्ड लाइक दैट. ठीक है? तो ये डायग्राम सबने ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. दिस होल प्रोसेस ऑब्वियसली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट कैन कम इन योर मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चंस, राइट? So yes, with this we finish this chapter, and I hope this chapter was quite an interesting chapter because ये सारी बातें जो हमने डिटेल में पढ़ी है that is quite new to you, and please keep making notes and keep studying, and I'll see you in the next lecture. Thank you.